creative accounting itself is not good or bad. Its use basically makes it good or bad. If it is used with good intention, with this perspective that it's not damaging someone, it's just portraying a better picture so that there should not be any panic in the stakeholders or there is no panic in the market. It's good, it's fair enough. But if it is done to deceive someone, to misguide someone, then obviously it is bad. It is done with the bad intentions, so it would be unethical or it is bad. So now moving forward, there could be different motives for doing the creative accounting. Some of them are basically the internal motives and some of the external motives. Internal motive may include the to meet the internal targets of the company. Sometimes company sets the sales profits targets that in this particular year we have to achieve this much of the sales volume in terms of units or in terms of rupees. So in order to get that volume, basically they play with the numbers. And sometime to ensure that the company is that much profitable, the profit targets are being set. तो उन profit target को achieve करने के लिए company क्या करती है, numbers के साथ play करती है. Interestingly, within the international accounting standards, by the provisions which are being provided by International Financial Reporting Standard IFRS 18, revenue is generally recorded when it is earned. आप लोगों ने normally इसको सुना भी होगा जो है ना उसमें, ठीक है, that revenue is recorded when it is earned. लेकिन अब वो earn का criteria क्या है, that varies from industry to industry, that can vary from company to company. For example, the moment you receive an order, it would be recorded as revenue of your business organization. जैसे for example ये जितनी mining companies हैं, the moment any mine is basically detected, या for example oil wells हैं, जब आपका oil well को discover होता है, तो it could be recorded as revenue for the business organization. क्योंकि वो टेक्निकली स्पीकिंग इतनी अमाउंट जो है ना वो कंपनी को फॉर श्योर शॉर्ट जो है ना वो मिलनी है. इसी तरीके से एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. आप देखें ऑनलाइन जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑनलाइन उनको ऑर्डर मिलता है, उसके अगेंस्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट कर देते हैं जो है ना उसमें. तो अगर एक कंपनी है जिसको जितना भी ऑर्डर ऑनलाइन मिलते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कस्टमर ने ऑर्डर टर्न डाउन किया हो, तो दे कैन रिकॉर्ड देयर रेवेन्यूज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑर्डर्स जो है ना उसमें. लाइकवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स जो है ना, गुड्स के जो ऑर्डर रिसीव हुआ है तो उस टाइम पे तो रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर ले, बट द मोमेंट दोस गुड्स आर शिप्ड, आपने कस्टमर्स को भिजवा दी, यू विल रिकॉर्ड इट एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसके साथ एक सेल्स इनवॉइस भी जो है ना इशू कर देंगे, जिसके ऊपर उससे रिसीविंग लेके, अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो रिसीविंग से ले ली जाएंगी, अदरवाइज उससे कैश जो है ना कलेक्ट कर लिया जाएगा. और वी शुड वेट टिल द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर जो है ना उसमें, कि गुड्स तो भिजवा दी हैं, बल्कि सॉरी रिसीट ऑफ गुड्स टू दी बायर जो है ना उसमें, कि गुड्स जब तक कस्टमर को नहीं मिलती, जब तक वो ओके नहीं करता, हम उस टाइम तक उसको जो है ना रेवेन्यू के तौर पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे. और यू कैन वेट टिल द कैश इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर. सो देयर कुड बी 5 पॉसिबिलिटीज. नंबर 1, at the time of, you can say, the discovery of the goods. Number 2, at the time of receipt of order. Number 3, at the time of shipment of goods. Number 4, at the time of receipt of goods to the buyer. And number 5, at the time of receipt of cash from the customers. तो अगर एक कंपनी एग्रेसिव चॉइसेस यूज करना चाहती है, तो द मोमेंट दे रिसीव ऑर्डर दे रिकॉर्डेड इट एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये देखें ना, जितने आपके सेल्स पर्सनल होते हैं, तो वो आपको ऑर्डर ला के देते हैं, सर इतना जो है ना वो सेल्स होगी, ये मेरे खाते में लिख दें. अब जब आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद, तो वो रिटर्न अगर हो जाता है, तो इनिशियली दैट वाज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो अपने सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए, अपनी जो रेवेन्यूज है उनको मीट करने के लिए कंपनी जो है ना फॉल्स रिकॉर्डिंग जो है ना वो कर सकती है. इसी तरीके से रिसीट ऑफ गुड्स टू द बायर, कि सम टाइम ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो विद इन ट्रांजिशन जो है ना डैमेज हो जाती हैं, तो कस्टमर बाय एंड लार्ज जो है ना कंप्लेन करता है कि आउट ऑफ ऑर्डर गुड्स आ गई हैं या डैमेज प्रोडक्ट्स आ गए, इनको वापस कर दें. तो उस कंडीशन के अंदर यू हैव टू वेट टिल द गुड्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द बायर, और जब तक उसको तरफ से ओके नहीं हो जाता उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें. एंड फाइनल इज कि आप कैश पेमेंट के ऊपर चले जाएं. आप गुड्स, आपने ऑर्डर भी रिसीव कर लिया, गुड्स को जो है ना शिप भी कर दिया, कस्टमर को रिसीव भी होगी, लेकिन जब तक कैश रिसीव नहीं होगा तो आप उसको रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे. अब लेट्स सपोज उसने आपको कैश पेमेंट करते हुए 2 महीने लगा दिए, या गुड्स को बेचने से लेके उसको कैश के रिसीव करने में 2 महीने लग गए, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स you will not record any amount as revenue of the business organization. So just playing with these different options that are available to the companies, you can increase your revenue or you can inflate your profitability. Then there could be certain possibilities.
to meet the external expectation, just what we have already discussed, if the employees and customers want their long-term survival of the companies. तो if there is a situation कि कंपनी के चेक्स बाउंस हो रहे हैं, कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिटीरियोरेट हो रही है, कंपनी लॉसेस के अंदर जा रही है, तो obviously they will have concern, they will lose their interest or they will lose their long-term relationship with the business organization. Same is true with the suppliers because they are concerned with their payment and long-term relationships. उन्होंने क्रेडिट पे गुड्स आपको सेल की हुई है, फ्यूचर में आपने उनको पेमेंट करनी है, तो अगर कंपनी सर्वाइव करेगी तो उनको रीपे करेगी. तो द सप्लायर्स बेसिकली वांट्स दिस एश्योरेंस कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे. तो अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर नजर आएगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी, तभी जो है ना वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा. अदरवाइज दे विल लुक फॉर न्यू कस्टमर्स, they will keep short term relationship with you and they will move away. And then company also wants to meet the endless forecast and dividend payout pattern. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि previously the company was having a stable growth, the company's profits were increasing जो है ना over the period of time, and in this year it is also expected that the company would perform good and it will pay more dividends to its you can say the owners or the shareholders. But due to certain reasons the company is unable to perform well because of some uncontrollable factors. तो मार्केट एनालिस्ट की जो है ना फोरकास्ट अगर जो है ना वो नहीं फुलफिल हो सकेंगी तो मार्केट वुड पेनलाइज यू जो है ना उसमें. सो दीज आर सम ऑफ द रीजन बिकॉज विच द कंपनी गोज फॉर द अर्निंग्स मैनेजमेंट. क्योंकि सबके हैंड्स रेज हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा बिकॉज आई एम अनेबल टू फिगर इट आउट कि कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और वैसे जो है ना किसने वैसे रेज किया हुआ हैंड. सर ये काइंडली बताइएगा कि ज़ाहिर है कंपनी अपने तौर पे तो तमाम वो इनोवेटिव और क्रिएटिव जो है ना वो मेथडोलॉजीज यूज कर रही है ताकि अपने वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट ना होने दे, सो दैट कि जिसकी वजह से शेयर होल्डर जो है उसका ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए. बट स्टिल कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स या कुछ ना कुछ इस तरह के साइन जो है वो नजर तो आ जाते हैं कि ये कमी जो है ये अभी इस तरह नहीं है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर अकॉर्डिंगली जो है ना अपना शेयर सेलिंग और बाकी चीजें कर सकते हैं. जी, उसमें देखें ना अब दो तीन चीजें हैं. अब पहला तो ये है कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर लुकिंग एट द फाइनेंशियल पोजीशन या आपने कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखा, तो अब कंपनी के ऑपरेशंस तक प्रॉफिट चल रहा है, बाद में कोई ऐसा एबनॉर्मल इवेंट हुआ जिसकी वजह से मैसिव लॉस कंपनी ने जो है ना सफर किया या मैसिव गेन अर्न किया जिसकी वजह से कंपनी लॉस में या प्रॉफिट के अंदर चलेगी, तो एज अ इन्वेस्टर यू हैव टू रिमेन विजिलेंट कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है या इशू है ये कहाँ पे है. फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि फॉर इंस्टेंस वी हैव एन इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल, यहाँ पे हम पहले भी ये बना चुके हैं. फॉर एग्जांपल सेल्स हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस हमारे पास आ गया ये ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे सेलिंग एंड एडमिन जो है एक्सपेंसेस टू गेट दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बेसिकली हमारा जो है ना इसको दूसरे वर्ड में ये भी कहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आ गया नॉन ऑपरेटिंग गेन्स और लॉसेस. अब सिचुएशन ये है, ये आपने किया तो दिस कुड बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और आगे आप मूव करते जाएंगे. अब फॉर एग्जांपल ये है कि सेल्स जस्ट एज्यूमिंग 1000 थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका लेट्स सपोज दिस इज 550 आपने किया, तो दिस ग्रॉस प्रॉफिट वाज दिस इज 450. तो इस 450 में सेलिंग एडमिन एक्सपेंस 150 थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया 300. अब हुआ इस तरह से कि कंपनी ने एक जो है ना जो उनका जो प्लांट था जो ऑब्सोलीट हो गया उसको जो है ना वो सेल किया, उसको सेल करने के ऊपर उनको लॉस हो गया $700 का. ठीक है, एंड दिस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टर्न्ड इनटू लॉस ऑफ $400. ठीक है, अब एज एन इन्वेस्टर यू शुड बी विजिलेंट इनफ कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी that is up to the operating profit, that is okay. There was no problem with the company's overall performance or routine operations. The problem came with this extraordinary event
ये एबनॉर्मल कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस सारी की सारी डिटीरियरेट हो गई है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा, बट इन्वेस्टर्स आर विजिलेंट इनफ, जो रैशनल आपका इन्वेस्टर है, जो आपका इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स है, जो पढ़ा लिखा इन्वेस्टर है, ही और शी वुड फिगर आउट कि ये जो आपका मसला आ रहा है, ये मसला जो है ऑपरेशंस की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि ये किसी और चीज की वजह से है। या वी टेक इट द अदर वे राउंड कि यहाँ पे कंपनी के जो है ना, ये तो यही थे, यहाँ पे कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, लेट्स सपोज वो $900 आ गए, तो आपका जो ये प्रॉफिट आ गया वो $100 आ गया। इसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 150 थे, और यहाँ $50 का कंपनी क्या कर गई, लॉस कर गई। अब यहाँ से कंपनी ने एक एसेट को सेल किया, और उस एसेट के ऊपर उन्होंने क्या किया, $400 प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये $350 का क्या हो गया, गेन हो गया। अब एक्चुअली अगर आप देखें तो दिस कंपनी इज अर्निंग ह्यूज जो है ना वो प्रॉफिट, 35% ऑफ इट्स ओवरऑल रेवेन्यू। लेकिन अगर रियल टर्म्स के अंदर देखें तो ऑपरेशंस में तो ये क्या कर रही थी, लॉस कर रही थी 5%। ये एक नॉन ऑपरेटिंग गेन इनको मिल गया। कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी जिसको जब इनिशियली परचेज किया तो लो कॉस्ट के ऊपर, आज उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, उसके ऊपर सेल किया, तो दे अर्नड क्वाइट अ हैंडसम प्रॉफिट। तो इसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर चलेगी। तो सम टाइम वो जो आप बात कर रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है ना उसको कवर अप कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर क्लियरली चले जाएंगे। तो अगर इन्वेस्टर आपका जो ना विजिलेंट है, तो क्लियरली फाइंड आउट कर सकता है कि यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, इस करंट ईयर के अंदर कोई एसेट सेल करके एबनॉर्मल गेन हासिल कर लिया, विच विल नॉट बी अवेलेबल इन द अपकमिंग ईयर। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी अर्न प्रॉफिट बट इट्स ऑपरेशंस वर नॉट गुड, इट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाज टू हाई, और अगर कंपनी इसको नहीं जो है ना वो ओवरकम कर सकती है इन द अपकमिंग ईयर्स, तो कंपनी वुड डेफिनेटली गो इनटू लॉसेस। तो ये इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है, इट ऑल डिपेंड्स कि यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कितना विजिलेंट है उस इंफॉर्मेशन को पिक करने के लिए, और उसको कैसे वो कवर कर पाता है जो है उसमें। जी, एनीथिंग एल्स? So other possible reasons would be companies want to show steady income stream and impress the investors to keep the share prices stable. शायद पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हो कि फॉर एग्जांपल there is a company in which the let's suppose the profits are increasing over the period of time. तो अब उसमें सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लेट्स सपोज इंक्रीज हो रही है, और इस तरीके से जो है ना वो इंक्रीज हो रही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। दूसरी एक कंपनी है जिसमें प्रॉफिट्स की सिचुएशन ये है कि इन सम ईयर द प्रॉफिट्स आर हाई, द अदर ईयर द प्रॉफिट्स आर लो, देन देयर इज अ स्टेबल जो है ना वो ग्रोथ, इट रिमेन्स फॉर सम टाइम पीरियड, देन देयर इज अ स्टीप इंक्रीज, देन देयर इज अ डिक्लाइन। तो दिस टाइप ऑफ द कंपनी वुड बेसिकली बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी विच इज very, you can say, volatile, in which the profits are increasing or changing over the period of time. So the companies which have a stable growth, investors generally prefer these. तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगी, प्रॉफिट्स तो आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी साल ज्यादा प्रॉफिट होंगे, किसी साल कम होंगे, किसी साल आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने से आपकी जो है ना ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स डिटेरियोरेट करके परफॉर्मेंस को, तो आपका प्रॉफिट जो है ना अंडरमाइन हो गया, परफॉर्मेंस तो अच्छी थी लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। तो उस चीज के लिए कंपनी क्या करती है, इनकम स्मूथनिंग करती है। इनकम स्मूथनिंग का मतलब ये है कि सम टाइम दे क्रिएट रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है विच इज नोन एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये है कि इन ईयर्स वेयर द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन क्या करती हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर देती हैं, और अपनी नॉर्मल ग्रोथ के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने डिविडेंड पे करना होता है वो डिविडेंड पे कर देती हैं। और लेटर ईयर्स में अगर किसी साल जो है ना वो लॉस हो गया या प्रॉफिट बहुत डिक्लाइन हुए, तो ये जो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है इसमें से प्रॉफिट को यूटिलाइज करके कंपनी जो रिक्वायर्ड डिविडेंड्स होते हैं या जो उनकी एस्टिमेटेड डिविडेंड्स होते हैं उनको क्या कर देती है, पे कर देती है। तो अब इनकम स्मूथनिंग आपने कर ली कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन जो थी उसको कंट्रोल कर लिया, जिस साल में प्रॉफिट ज्यादा है उसमें से प्रॉफिट को आप क्या करें, रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, जिस साल प्रॉफिट कम है उस रिजर्व से निकाल के प्रॉफिट को आप क्या कर लें, यूटिलाइज कर लें जो है ना उसमें। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को आप जो है इम्प्रेस कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं, जिसके की वजह से शेयर मार्केट जो है ना आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, आपकी जो प्राइसेस हैं मार्केट के अंदर जो है वो स्टेबल रहेंगी।
Window dressing for an IPO loan, we have already discussed it, that the company is going to offer new shares. So they have to show their better performance in the market. They have to show a better picture or financial position. So in that situation, the company may go for window dressing or basically portraying their better picture. In the same way, the company is going to take loan. तो आप उस लोन को लेने के लिए भी obvious सी बात है कि ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है ना वो शो करनी है. तो उसने बड़ी सी बात की थी कि अगर आप बैंक को ये प्रूव कर दें कि आपको लोन की जरूरत नहीं है, तो यू कैन इजिली गेट द लोन जो है ना उसमें. लेकिन अगर आप ये उनको जाके ये कहते हैं कि यू आर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यू आर फेसिंग लॉसेस और यू आर इन प्रॉब्लम्स एंड यू नीड देयर हेल्प, तो बाय एंड लार्ज बैंक वुड रिफ्यूज यू, बिकॉज they the loan that they are giving would only depend on your debt paying ability. जो है ना, जितनी debt paying ability आपकी strong होगी, इतने ज्यादा chances हैं कि आपको लोन जो है ना easily मिल जाएगा जो है ना उसमें. Then taxation, already हम discuss कर चुके हैं. Sometime the company wants to reduce the tax burden. To get the tax benefits, they can go for the aggressive choices. उन aggressive choices को use करते हुए they can increase their expense, और expense increase होने से क्या हो जाएगा, profit कम हो जाएगा जो है ना. Change in the management. अब सम टाइम ये होता है कि मैनेजमेंट चेंज होती है, तो जैसी मैनेजमेंट चेंज होती है तो जो नया जो सीईओ आया है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वो जो आने वाले सालों के लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं करंट ईयर में, क्योंकि करंट ईयर की परफॉर्मेंस तो किसकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी, प्रीवियस सीईओ की या एमडी की. तो जितने एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको इस साल रिकॉर्ड कर लें. इस साल रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि करंट ईयर जो आपका प्रॉफिट है वो मैसिवली डिक्रीज हो जाएगा, और आने वाले साल जो है ना वो आपके ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों के एक्सपेंडिचर्स और या लॉसेस जो है ना वो आपने करंट ईयर अकाउंट फॉर कर लिए थे. इस टेक्निक को जनरली बिग बात इफेक्ट भी बोला जाता है कि एंटिसिपेट ऑल द अपकमिंग फ्यूचर लॉसेस एंड दोज लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर, व्हिच इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस जो है ना वो मैनेजमेंट, और आने वाले सालों में ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर हो जाएगी. तैमूर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? तैमूर, इकरा, मलिक मोहम्मद अली, आपके हैंड्स रेज हैं. आई होप दैट सर ये मैं छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए. जी 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 प्लीज. जी शायद सर ये जो आपने बताया है, जो इनकम स्मूथिंग में बताया है कि वो अगर बेनिफिट ज़्यादा होते हैं तो सेल्स अच्छी हो जाती हैं तो वो कन्वर्ट कर देते हैं रिजर्व में, और बाद में अगर वो कुछ कम होता है तो उसको दोबारा ले आते हैं. तो ये रिजर्व सर इसको शो करते हैं कहीं किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, या क्या होता है जी सर? जी बिल्कुल. आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है, उसी शेयर होल्डर्स इक्विटी के पोर्शन में रिजर्व्स आते हैं जो है ना उसमें. ठीक है, आपका क्या होता है, आप उसमें बैलेंस शीट में लिखते हैं इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. उसके बाद इसमें डिफरेंट अगर कोई और आइटम्स हैं इसको लिखा जाता है जी. शेयर प्रीमियम अकाउंट भी बोला जाता है, कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू भी बोला जाता है, कि अगर शेयर्स को आपने जो पार वैल्यू उससे एक्स्ट्रा के ऊपर जब सेल किया है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है शेयर प्रीमियम है, या इसको आप कहते हैं कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार. ठीक है, ये भी उसी का हिस्सा है इशूड कैपिटल का, क्योंकि इशूड कैपिटल हमेशा पार वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होता है, तो उससे एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे इन टर्म्स ऑफ शेयर प्रीमियम उसको आप अलहदा से लिखेंगे, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, लेकिन उसको अलहदा लिखेंगे. इसी तरह से जो आपके रिजर्व्स हैं उनको भी आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे. अब रिजर्व्स के अंदर रेवेन्यू रिजर्व भी हो सकते हैं जो प्रॉफिट में से क्रिएट हुए हैं और जिनसे आप फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपने इसको लिख दिया, या आप कहते हैं जी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं हमारे पास, तो ये रिजर्व्स हैं. ठीक है, जिनको आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिए जो है ना उसमें. तो अभी ये क्या है, रेवेन्यू के तौर पे आपने जो है ना वो सॉरी प्रॉफिट के तौर पे आपने क्या किया, होल्ड कर लिए. लेटर ऑन इन द फ्यूचर टाइम पीरियड जब आपके कंपनी के अंदर प्रॉफिट कम है तो आप क्या करें कि जब डिविडेंड देंगे तो आप क्या करें, इन्हीं रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज कर दें. तो रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसमें से आप क्या करेंगे, डिविडेंड अनाउंस कर देंगे. तो बेसिकली एंट्री होगी डिविडेंड पेएबल अकाउंट. तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, उसको आपने डेबिट कर दिया, तो जितनी अमाउंट से वो डेबिट होगा इतना यहाँ से रिटेन्ड अर्निंग में से उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो इस साल के जो डिविडेंड्स होंगे
उसके लिए करंट ईयर प्रॉफिट को यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो प्रीवियसली आपके पास हेल्ड प्रॉफिट है उसी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल शो किए जाते हैं। आपकी जो ऑनर्स इक्विटी होती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है, उसी के कंपोनेंट होता है ये रिजर्व्स वहां पे मेंशन होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी। अच्छा जी, इसके बाद है ये तो हो गया चेंज इन मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ द डिफरेंट वेज थ्रू विच द बेसिकली the window dressing can be done. How to deliberately present a false picture of the business organization. Number one, overvaluing the closing stock, due to which the cost of goods sold would change and total asset in the balance sheet would change। जो है ना उसमें जो हमारे पास स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसको जनरली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? सेल प्राइस पे। सर जो ईयर के एंड पर हमारे पास ठीक जो है, जो हमारे अमाउंट पास होती है, अनसोल्ड रहेगी प्रोडक्ट्स, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अगर आप क्वार्टरली अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो क्वार्टर के एंड पे जो आपके स्टॉक होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अगर आप एनुअली कर रहे हैं तो ईयर एंड के ऊपर, फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर जो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास जो है ना क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये जो आपका जो स्टॉक है, डिफरेंट मेथड इसके लिए यूज करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी यूज होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है जिसको हम लाइफो कहते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो मेथड है। इसी तरह एवरेज जो है ना कॉस्टिंग मेथड, उसको भी यूज कर सकते हैं। यस ठीक है। सर। अब अगर देखें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये है कि जो प्रोडक्ट्स आपने पहले परचेज की हुई थी उनकी कॉस्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है ना वो चार्ज करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जिस कॉस्ट के ऊपर ली थी उसको आप जो है ना वहां से करेंगे। तो आपने जब सेल्स में से माइनस करनी है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये बेसिकली क्या होती है, आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री, इसमें आप ऐड करते हैं अपनी परचेजेस को, ठीक है, और माइनस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को, माइनस कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना उसमें। आप फॉर एग्जांपल पहले आपके पास जो है ना वो आपने 1000 यूनिट्स परचेज किए हुए थे एट द रेट 10, ठीक है। उसके बाद आपने फिर कुछ और यूनिट्स जो है वो परचेज किए हैं जो है ना उसमें, ठीक है, और ये आपके पास पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज आपने 2000 और यूनिट्स परचेज किए और ये जो यूनिट्स आपने परचेज किए ये आपने कर दिए 15 के हिसाब से जो है ना उसमें, ठीक है जी। अब इसमें से ये हुआ टोटल आपके पास अवेलेबल थे, जिसको हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कह देते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो आपके पास जो बिगिनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी दैट इज 10,000, परचेज जो आपने किए 30,000 हो गया, ठीक है। इसमें से आपने क्या किया, सेल कर दिए यूनिट्स। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये है कि जो आपके पास पहले यूनिट्स पड़े होंगे उनको आप पहले कंज्यूम करेंगे। पहले आपने कौन से परचेज किए हुए थे, 10 वाले। लेट्स सपोज कंपनी ने क्या किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1000 यूनिट ही सेल किए। अब वो जो 1000 यूनिट कंपनी सेल कर रही है उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली कॉस्ट कौन सी चार्ज की जाएगी, जो उन यूनिट्स की पहले वाली कॉस्ट थी, मतलब जो इनिशियली आपने यूनिट्स परचेज किए थे 10 के हिसाब से, इसको लिखेंगे। और आपके पास यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी बनी, 40,000। इस 40,000 में से आपने क्योंकि सेल कर दिए जो यूनिट्स, उनकी कॉस्ट थी 10,000, तो रिमेनिंग जो एंडिंग इन्वेंट्री वो आपके पास बच गई, वो कितनी बच गई, 30,000 की। यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो यूनिट्स आपने पहले परचेज किए हुए थे वो आपने पहले जो है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से सेल कर दिए। तो जो आपके पास अनसोल्ड यूनिट्स होंगे वो कौन से होंगे, जो आपने बाद में खरीदे थे। तो बाद में जो यूनिट्स खरीदे थे वो कितने खरीदे थे आपने, 30,000 के। तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि एक्सपेंस है, जितना आपका एक्सपेंस कम होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 10,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और आपने इन यूनिट्स को सेल कर दिया 25,000 में, तो इस सूरत में आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15,000। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री को आप ओवर वैल्यू कर लेते हैं, ऐसा मेथड यूज करते हैं जिसमें अनसोल्ड यूनिट्स की वैल्यू हायर वाली रह जाए,
तो उसकी एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। जब एंडिंग इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं किया, वही यूनिट्स पड़े हुए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज किया है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड की वजह से आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होगी। जब एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी चेंज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। इसी को अगर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कर लेते, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हमने कितने का यूनिट परचेज किया था, 15,000 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाता, 15,000। अब अगर 25,000 का सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 10,000। तो सिर्फ आप देखें कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज करने से कंपनी ने $5,000 जो है ना प्रॉफिट उसको चेंज कर लिया। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बिजनेस के लिए एसेट भी होता है, तो जब बैलेंस शीट में आप स्पेसिफाई करेंगे तो अगर हायर वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की तो आपकी एसेट्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज वन वे ऑफ प्लेइंग विद योर प्रॉफिट, दैट यू कैन ओवर वैल्यू योर स्टॉक और दी इन्वेंट्री। उसकी ओवर वैल्यूएशन की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कंपनी का हायर हो जाएगा जो है उसमें। उसके बाद है एन एक्सपेंस में बी ट्रीटेड एज एन एसेट टू इंप्रूव द बुक जो है ना प्रॉफिट। ये पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट इज फॉर लेस देन 1 ईयर, जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जब ईयर एंड होगा तो उसका बेनिफिट ऑलरेडी आप एक्सपायर कर चुके, यूज कर चुके होते हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करने के बजाय एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। जैसे रूटीन के अंदर हम मेंटेनेंस करा रहे होते हैं तो मेंटेनेंस हमारा एक्सपेंस है, लेकिन उस बाउंड्री वॉल की मेंटेनेंस कराते हुए ऐसा हुआ बारिश हुई और बाउंड्री वॉल जो है ना गिर गई। अब आपने क्या करना है, उसको रिपेयर करवाना है। जब उस बाउंड्री वॉल को आपने रिपेयर करवाया तो उसी के साथ आपने पार्किंग शेड भी जो है ना वो बनवा दिया। तो आपने कहा जी पार्किंग शेड बनवाने की वजह से इस जो बाउंड्री वॉल है इसकी जो है ना यूजफुल लाइफ बढ़ गई, या ओवरऑल प्रेमिसेस की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई। तो इसको वजह से इसको हम रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं चार्ज कर सकते, इट इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो इसको बैलेंस शीट में क्या करें, एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करें। तो जब इस वैल्यू को आप बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसेट में। तो करंट ईयर एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपेंस रिड्यूस होने से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से ऑल्टरनेटिवली एन एसेट में बी एक्सपेंस टू शो द लोअर प्रॉफिट जो है ना। अब यही वाली एग्जांपल दोबारा ले लें कि आपने उसकी मेंटेनेंस करवाई और मेंटेनेंस के साथ जो है ना पार्किंग शेड भी बनवा दिया, तो आपने कहा जी कि इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो सिर्फ रूटीन हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है जो हम करते रहते हैं। थोड़ा सा बाउंड्री वॉल के साथ उसकी जो है ना रिपेयर मेंटेनेंस के साथ हमने शेड भी क्रिएट कर दिया। तो किसने ये डिसाइड करना है कि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में एक्सपायर करना है, रिसीव होना है? दिस इज बेसिकली द मैनेजर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर ने अगर ये डिसाइड करना है तो ऑटोमेटिकली उसका होगा क्या कि ये जो आपने एसेट है इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया तो करंट ईयर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जब करंट ईयर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा जो है उसमें। ठीक है जी। यस सर। इसी तरह रेवेन्यू में भी ट्रांसफर टू अ लायबिलिटी थ्रू प्रोविजनिंग टू रिड्यूस द बुक प्रॉफिट्स। आपको जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है उसमें से कितनी अमाउंट को रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करें, कितनी अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए रेवेन्यू के तौर पे? जी जो हो सब जो रेवेन्यू रिसीव हो वही होना चाहिए। अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट का आगे डिस्कस भी करते हैं। आपकी कंपनी ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो है ना वो सेल किया है, और ये जो सॉफ्टवेयर पैकेज सेल किया उन्होंने लेट्स सपोज 1,000 या $10,000 का सेल किया। इस $10,000 में से कितनी अमाउंट उन्हें रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करनी चाहिए? सर होगी तो 10,000 की 10,000 ही। 10,000 ही होगी, लेकिन इन ये जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं इनके साथ आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो एसोसिएटेड होती है ना। एग्जैक्टली। यस सर। बाद में कोई बग्स आ गए, कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो वो कंपनी जो है वो क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी। अब कंपनी ये कहती है कि ये जो टोटल हमारे पास रेवेन्यू जो रिसीव हुआ है ये सारे का सारा हम रेवेन्यू के तौर पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि बाद में जब हमने आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो कुछ रेवेन्यू तो उस टाइम अर्न होगा जब हम सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू उन्होंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए रेवेन्यू। तो टोटल जो है वो 100% है। इस 100% में से उन्होंने क्या कर दिया, अर्न जिसको कर लिया, जिसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, दैट इज
70%। और जो अभी अनअर्न्ड है, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी, वो कितना है? 30%। 30%। ठीक है, तो बाय डूइंग दिस, instead of recording all the amount of $10,000 as the revenue for the company, what they can do is 10,000 का 70% कितना बनता है? 7,000। 70,000। So 7,000। $7,000 would be recorded as revenue, whereas $3,000, which is unearned revenue, this would be treated as liability of the business organization. तो आप देखें, सिर्फ एक जो है उसकी रिकग्निशन प्रैक्टिस को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू, एंड दिस इज परमिटेड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, उसमें बिल्कुल ठीक है कि रेवेन्यू तो तब रिकॉर्ड होगा ना जब वो अर्न होगा। तो अगर आपने एडवांस में किसी से पैसे ले लिए हैं तो वो तो अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा, दैट इज अ लायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आफ्टर सेल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या है, आपने पैसा तो एडवांस में ले लिया है, जब उन्हें कोई मसला मसाइल होगा तो उस मसले को जो है ना आप जाके क्या करेंगे? टेक केयर कर लेंगे जो है ना उसमें। ऐसी बात है ना। सर उसमें ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आपको और भी चार्ज करते हैं वो, कि अगर ये चीजें हुई या इस तरह कुछ हुआ तो हम उसके बिहाफ पर आपको थोड़ा और भी चार्ज करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो वो जो चार्ज होगा वो तो अर्नड रेवेन्यू में तो आ वो फिर जाएगा। इमिडिएट होगा सर। वो फिर आपका यहाँ पे आपने कहा था जी कि अनअर्न्ड जो है ना 30% है, ये 3,000 तो आपका रेवेन्यू आएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपने जो है ना उनको चार्ज कर दिए यहाँ पे 3,000 के अलावा भी आपने कहा जी कि आपको फॉर एग्जांपल 2,000 और देना पड़ेगा। तो उस सूरत में वो जो आपका जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, जब वो अर्न में कन्वर्ट होगा तो वो 3,000 नहीं होगा बल्कि कितना हो जाएगा? 5,000 होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग तो आपने उसको डेफर कर दिया ना, आपने 10,000 तो रिकॉर्ड करने की बजाय उसको 7,000 कर लिया, तो 3,000 से अपने रेवेन्यू को आपने अंडर कास्ट कर दिया। तो जब 3,000 से रेवेन्यू अंडर कास्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो उसके ऊपर जो है ना टैक्स इम्प्लीकेशंस जो है ना वो कम हो जाएंगी। नाउ हु हैज टू डिसाइड कि 70% इज अर्न्ड एंड 30% इज अनअर्न्ड? दिस टोटली लाइज विद द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट जो है ना उसमें। मैनेजमेंट सर। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, कंपनी जो है ना ये करती है। और दूसरी, अब ये कंपनी ये कहती है कि 100 का 100% टर्न हो गया, आज तक हमें कंप्लेन आई नहीं है। जैसे आगे कुछ लोग कह रहे थे कि सर हम तो कंप्लेन करते रहते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वाले ये भी तो कंप्लेन कर सकते हैं ना कि सर आज तक हमें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, हमारा तो कैंपस ऑन था, कोई बच्चा आ ही नहीं है जिसका मसला हम हल करते जो है ना। बच्चा बेचारा कैसे आता कि गेट से उसको एंटर ही नहीं होने दिया। तो सेम इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज के वो जो यूआरएल नंबर दिया जाता है, जो लैंडलाइन नंबर दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको कोई अटेंड ही नहीं कर रहा होता। तो क्योंकि उनके पास कंप्लेन रजिस्टर्ड ही नहीं होती तो दे कैन जो है ना वो बेसिकली कम अप विद दिस थिंग कि आज तक हमें तो कोई कंप्लेन वसूल ही नहीं हुई। इस वजह से 100% जो हम रेवेन्यू सेल करते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देयर आर नो जीरो आफ्टर सेल सर्विसेज। तो सारे का सारा क्या करना चाहिए? रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ठीक है जी। तो इस सूरत में ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो जो अनअर्न्ड रेवेन्यू था उसको भी आपने क्या कर दिया? रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू एक्सीड कर जाएगा। जब रेवेन्यू एक्सीड करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एनहेंस हो जाएगा जो है ना। ओके जी, देन मूविंग फॉरवर्ड, बुक फॉल्स गेन्स थ्रू सेल परचेज बैक। आपने 30 से 40 साल पहले जो है ना एक बिल्डिंग खरीदी 1.5 लाख रुपए की जो है ना उसमें, ठीक है, एक कोई जमीन थी वो 1.5 लाख रुपए कनाल थी जो है ना उसमें। कंपनी इज शो बाउंड टू शो द कॉस्ट ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। जो लोग अकाउंटिंग से बैकग्राउंड रखते हैं आपको याद होगा कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। जिस वैल्यू पे एसेट एक्वायर किया जाता है उस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। मार्केट वैल्यू के ऊपर या उनकी जो फेयर वैल्यू है उसको नहीं कंसिडर करते अनलेस और अनटिल उसको रीवैल्यू किया जाए। अब करंट मार्केट प्राइस उस लैंड की जो आपने 30 साल 40 साल पहले खरीदी थी 1.5 लाख की, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी है? 30 मिलियन होगी, 3 करोड़ की होगी। ये नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर चीजें आती हैं। अब मैनेजमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि बुक को पे तो किस किस पे रिकॉर्ड करना है? 1,50,000 पे। 30 मिलियन का वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट तो उसकी 1,50,000 है। अब मैनेजमेंट क्या करती है, इस लैंड को सेल कर देती है ऑन सम प्री डिसाइडेड टर्म्स टू परचेज इट बैक। फॉर एग्जांपल मेरे पास जमीन थी, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 30 मिलियन का सेल करता हूं और मैं क्या करूंगा, 15 दिन के बाद आपसे दोबारा ये 30 मिलियन की खरीद लूंगा। आप कहते हैं ठीक है सर, कोई इशू नहीं है जो है ना उसमें। तो जब मैंने आपको सेल किया तो सेल करते हुए क्या चीज हो रही है कि मेरे पास जो एसेट पड़ा हुआ था, देखिएगा इसकी जरा ट्रांजेक्शन, उसके अगेंस्ट मुझे कैश रिसीव हो रहा है 30 मिलियन।
ठीक, इसकी लेट्स सपोज हम बुक वैल्यू जो उसकी कॉस्ट है उसको 150,000 की बजाय जो है ना हम ये कर लेते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं 1 मिलियन या उसको 3 मिलियन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना वो कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो जो एसेट हमने सेल किया, जो लैंड हमने सेल की, उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3 मिलियन। 3 मिलियन की यहाँ पे चीज सर हमने, एक जो कैश है ये आपको डेबिट हो रहा है। जी जी, कैश रिसीव हो रहा है ना, तो डेबिट हो जाएगा जो है ना उसमें। एसेट आप सेल कर रहे हैं, लैंड आपने सेल कर दी, एसेट डिक्रीज हुआ, उसको क्रेडिट कर दिया। तो 3 मिलियन की जो लैंड आपने परचेज की थी आज से 10-15 साल पहले, उसको आपने 30 मिलियन के अंदर सेल कर दिया जो है ना उसमें। तो 3 मिलियन की चीज अगर 30 मिलियन में सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके ऊपर 27 मिलियन, 27 मिलियन आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसको आप लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। ये आपके पास कितना है, 27 मिलियन। यही ट्रांजैक्शन होगी ना जी। यस सर। 3 मिलियन की चीज आपने 30 मिलियन में सेल कर दी तो यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 27 मिलियन। अब ये 27 मिलियन आपका क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट में गेन ऑन सेल ऑफ एसेट के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस साल का प्रॉफिट मैसिवली इंक्रीज हो गया जो है ना उसमें। और क्या हुआ, 15 दिन के बाद आपने दोबारा इसी लैंड को 30 मिलियन का परचेज कर लिया। तो जब दोबारा लैंड परचेज करेंगे, लैंड एसेट इंक्रीज होगा, 30 मिलियन से उसको डेबिट कर देंगे और इसके अगेंस्ट आप क्या पे कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट आप कैश पे करेंगे। तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे 30 मिलियन से। अब जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें आप। कैश अकाउंट यहां आपका डेबिट हुआ था, सॉरी, कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हुआ था 30 मिलियन से और ये कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 30 मिलियन से। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लैंड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 30 मिलियन से और यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट आपके पास 27 मिलियन आ जाएगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन करने से आपने क्या किया, एसेट की वैल्यू को भी 27 मिलियन से इंक्रीज कर लिया और दूसरी साइड पे 27 मिलियन का प्रॉफिट भी अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, जबकि एक्चुअल कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के अंदर कोई चेंज नहीं हुई। तो बाय जस्ट रिकॉर्डिंग अ फॉल्स सेल, और हुआ कुछ भी नहीं है, सेल कुछ नहीं हो रही, आपने बेची है उसी चीज को जो है ना खरीद ली है। सिर्फ क्या हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन जो है ना हो रही है, अदर देन दैट उसकी पोजीशन भी लीगली ट्रांसफर नहीं हुई, आपने जो है ना उसकी पेमेंट भी कोई नहीं हुई, एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से उसको वापस ले लिया। बाय डूइंग सो यू हैव रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 27 मिलियन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो बैलेंस शीट साइज है वो भी 27 मिलियन से इंक्रीज कर दिया कि 3 मिलियन की जो लैंड थी उसको अब आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 30 मिलियन में, 30 मिलियन में। तो दिस इज अनदर वे थ्रू विच मैनेजमेंट कैन बेसिकली play with their numbers, play with the performance or the profit of the business organization. Okay ji, moving forward, there could be another possibility, big bath charges. बिग बात चार्जेस ऑलरेडी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर लॉसेस, जो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल आपको अलाउ करता है कि एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट गेन्स, कि जितने भी आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए हम प्रोविजंस क्रिएट कर रहे होते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो भी बैड डेट्स हुए तो नहीं होते, लेकिन इस एंटिसिपेशन में कि फ्यूचर में हमें बैड डेट्स हो सकते हैं, हमारे जो रिसीवेबल्स हैं हो सकता है वो हमें पैसे ना दें, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री नॉर्म्स, बेस्ड ऑन द पास्ट प्रैक्टिसेस, आप क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजन बेसिकली क्या चीज है, यही एंटिसिपेशन है ना। तो इसी एंटिसिपेशन में आप ये कहते हैं कि आने वाले सालों में हमें ये लॉसेस हो सकते हैं, उनको आपने इस साल के अंदर जो है ना रिकॉर्ड कर दिया। तो इस साल में रिकॉर्ड करने की वजह से दिस वुड रिजल्ट इन अ लंपिंग ऑल द एक्सपेंसेस इन वन बैड ईयर, दे कैन स्टार्ट शोइंग बेटर प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग ईयर। पिछला साल वैसे ही कोरोना से इफेक्टेड था, लोगों को पता है कोरोना की वजह से बिजनेस जो है ना डिटीरिएट हुआ। आपने उसी एंटिसिपेशन में कि आने वाले साल में जो 2-3 सालों में जो लॉसेस हो सकते थे उनको भी उसी ईयर बुक कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेंटीमेंट है कि कंपनी से परफॉर्म नहीं किया कोरोना की वजह से, तो इसका बेनिफिट उठाएं, आने वाले सालों के जो है ना जो लॉसेज हैं वो उसको इस साल रिकॉर्ड कर लें। तो उससे होगा क्या, ये साल तो बहुत बुरा होगा लेकिन आने वाले सालों में ऑटोमेटिकली कंपनी जो है ना वो प्रॉफिट शो करना शुरू कर देगी जो है ना उसमें। तो इंस्टेड ऑफ लिंगरिंग इट ओवर टू द डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, आप एक ही साल में जो है ना जो भी उसका जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर लें, ताकि आने वाले सालों में जो है ना ये प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना वो कर्टेल हो जाए, रिड्यूस हो जाए। देन कुकी जार रिजर्व्स,
Over provisioning of accrued expenses when revenues are high helps to bring down profits to a level that is safe to maintain in future. आपने कहा जी कि ज्यादा सेल्स हो रही हैं तो आपने जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स थी उसको बढ़ा दिया, आपने कहा नहीं लॉसेस के चांसेस भी जो है ना ज्यादा हो जाएंगे, तो अब इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि इस सालों में रेवेन्यू ज्यादा है, तो रेवेन्यू ज्यादा होने की वजह से जो आपने प्रोविजंस क्रिएट किए हैं उनको ज्यादा क्रिएट करने से क्या होगा कि आपका जो वो प्रॉफिट है वो कुछ ना कुछ जो है ना कर्टेल हो जाएगा। और दूसरा, आने वाले सालों में आपके पास ये रिजर्व या प्रोविजंस अवेलेबल होंगी कि अगर कोई बैड डेट्स होते हैं तो उनको इजीली इसमें से अकाउंट फॉर कर देंगे, तो आने वाले सालों में अगर आपका रेवेन्यू कम भी हुआ तो इन प्रोविजंस में से जो है ना उन एक्सपेंसेस को आप एडजस्ट करके अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं जो है उसमें। देन मटेरियलिटी पर्सपेक्टिव, अब नॉर्मली किस आइटम को हमने एक्सपेंस ट्रीट कर Excuse me, सकते हैं? sir. जी 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 अब्दुल सर टाइम को जरा सर देख लें। टाइम को देख लें, 5:46 हुए हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी हुआ था, अगर 6 o'clock ऑफ कर लें कोई इशू तो नहीं है? सर वैसे दिमाग की बत्ती जो है ना काफी गुल हो गई है। अच्छा सर अगर अच्छा चलें सर अगर इसको जी जी नेक्स्ट टाइम काफी हो गया सर आज के लिए। चलें फिर इस तरह से कर लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड कर लें, इफ यू गिव मी जस्ट 2-3 मिनट्स, इसको लास्ट वाले को कर लेते हैं फिर उसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है? श्योर चलें, ठीक है। मेटिलिटी का ये है कि आपने किस एक्सपेंडिचर को जो है ना वो आपने एक्सपेंस के तौर पे जो है ना वो रिकॉर्ड करना है। देखें एक सिंपल सी बात है, आप ऑफिस में स्टेपलर यूज करते हैं? यस सर। जी नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, कितना अर्सा ना करें सर। सारी करते हैं जो है ना, नॉर्मली वो स्टेपलर कितना अर्सा यूजफुल रहता है? 2-3 साल चलता है सर। जब तक गुमे ना चलता ही रहता है सर। जब तक गुमे ना चलता रहता है, 2 साल 3 साल चला लेते हैं। आज तक आपने देखा हो कि किसी कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में जो स्टेपलर है या ऑफिस सप्लाईज जिनको हम बोलते हैं उसको लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर शो किया हो? नो सर। नहीं शो किया। क्यों नहीं शो करते? बेनिफिट तो मोर देन 1 ईयर है। लेकिन अगले साल खरीदी करने हैं। सर बात तो जायज है लेकिन सोचा नहीं कभी। सर मेरे ख्याल ऑफिस एक्सपेंस जो होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म एसेट में कंसीडर ही नहीं करते। नहीं ऑफिस सप्लाईज जो होती हैं, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज जो करंट एसेट में करते हैं ना, क्यों नहीं उसको नॉन करंट में कहते हैं? हालांकि उनमें से कई तो ऐसे होते हैं जो साल साल चलती रहती है, हमने कभी गौर ही नहीं किया उसको। उसकी वजह ये होती है कि वो उसका बेनिफिट तो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, लेकिन वो इममेटीरियल होती है, मतलब उनका जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता। तो अब आप ये कह देते हैं, एक थ्रेश होल्ड लगा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल $5,000 से जो एक्सीड करेगी चीज, ठीक है, वो क्या करेंगे, हम उसको एसेट के तौर पे लिखेंगे। उससे कम की जो परचेजेस होंगी उनको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने $4,500 का भी फर्नीचर खरीदा तो उस $4,500 के फर्नीचर को आप क्या करेंगे, करंट एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि थ्रेशहोल्ड ये है कि 5,000 से ज्यादा अमाउंट एक्सीड करेगी तो वो आपका जो है वो एसेट के तौर पे आएगा, अदरवाइज आपने क्या करना है, उसको एक्सपेंस आउट कर देना है। तो अगर कंपनी ये डिसाइड करती है नहीं ये $4,500 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, 5,000 की बहुत ज्यादा है, इसको 2,000 पे ले आए, तो 2,000 पे लाने की वजह से क्या होगा कि जो आपने 2,500 का जो है ना एक्सपेंस किया हुआ था, 3,000 का एक्सपेंस किया हुआ था, ये सारे एक्सपेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, इसको चेंज करने से कि इस लेवल से नीचे की अगर अमाउंट होगी तो वो एक्सपेंस होगी, इससे ऊपर होगी तो वो एसेट होगी, इसको चेंज करने से आप क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स और एक्सपेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो जनरली ये जो ऑफिस सप्लाईज हैं नॉमिनल वैल्यू की होती है, इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो नॉर्मली वो ट्रीट देम एज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको रूटीन एक्सपेंसेस के अंदर ट्रीट कर देते हैं जो उसमें। ठीक हो गया जी? तो यस सर, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। ये रेवेन्यू रिकग्निशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग काइंडली सिर्फ ये कीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का केस ये बिल्कुल वही है जो हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर पैकेज वाला ना, कि टोटल $100 का सेल किया, कितने उसके रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। और ये आगे एग्जांपल्स हैं कि हम फैक्ट्री बिल्डिंग की अगर जो है ना रिपेयर कराएंगे तो उसको क्या ट्रीट करना चाहिए और कैसे इसको जो है ना प्रॉफिट को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से
कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग में, अनसोल्ड इन्वेंट्री को, ये सारी चीजें वो हैं जो पहले डिस्कस हो चुकी हैं, बट विद एग्जांपल दीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो यू ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स, इनको पढ़िएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी हुई या कोई इशू हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ओके सर, Thank you, sir. Okay, sir. थैंक Thank you, sir. थैंक यू सर काइंडली ये शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे जी, मैं slides. जी मैं कर देता हूँ। सर थैंक यू, सर थैंक यू। Uh, अल्लाह हाफिज।